डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब Welcome to Dr. Saab. My name is Dr. Tanya, and today you're tuning into this episode where we're going to talk about orthopedics. I was recently posted in orthopedics during my internship, where we used to take patient rounds, and during the patient rounds, we interacted with patients, and they used to pose us with different questions. So I thought, why not record them and pose them to our expert guest today, who is a professor and HOU at DY Patil Hospital. He's the president of Navi Mumbai Orthopedic Association and an executive council member of Bombay Orthopedic Association. It's none other than Dr. Sachin Kale, sir. Hello. Hello, sir. How are Hello. you? Thank you for Fine. joining me on my podcast today. Thank you for calling me. Yes, sir. So let's start with this podcast. Okay. Could you just share something about your early life and what drew you to orthopedics? Okay, so this is like quite a personal question to me. So I started with pursuing the medical field was reason why, because my dad wants to become a doctor. It was his dream, Okay. and he got a good marks, but there was no guidance for him. So we were 3 siblings, and one funny story I will tell you. Once I finished my 10th, so I was deciding to go to engineer. My second brother was decided to go to medical, Okay. and the third brother was decided to arts. He was very good in drawing. Huh. And as destiny and some things written different, when I got good marks in both and was able to get both the seats. And the engineering was supposed to occur, but the stay order occurred in the engineering, and then I got the admission in medical college, Sion Hospital, one of the few seats. And once I got in Sion Hospital and went home, the eyes and the facial expressions of my parents were so much that I denied I did not went for the interview of the engineering, and I pursued the medicine. That is the way engineering student become a medical student. Oh, So that's the twist. okay. And then the second brother became the engineer, and the third was the dentist. So what we thought 1 or 2 years prior was completely vice versa. But no regrets. Really happy for that. So that is where the MBBS started. All right, sir. And then what drew you to ortho? Again, that is interesting. The same thing happened here. Very much like into pediatrics. Wanted to go to pediatrics. Oh, But again, the marks was a deciding factor. And then many said कि orthopedics is super specialty. okay. सर्जरी करोगे थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा. Orthopedics super specialty. And then once doing internship, started drawing more. Till MBBS, pediatrics ही करना है, medicine ही करना है. And then looking at some innovative techniques, you can make the patient walk a little bit. Right. And I feel super specialty in one of the topmost field in the postgraduate, and that is the reason the PG. I had to do a lot of hard work for that, because that 1 year AMOship also was required. Yeah. And good, I did from Sion Hospital MBBS, and Nair Hospital I did the postgraduates. And so one of the best institutes I did. So I was really happy for that. So that's the way दोनों कहानी में twist है, MBBS के भी और PG के भी. So that's the thing. Okay, sir. But आपने कोई challenges face किया क्या आपके early जो career में? Challenges you're talking MBBS or like PG? नहीं, PG के time पे. PG time, like I feel definitely the PG that time was very less seats. Okay. Lot of patients. Like in Nair, I used to handle the 3 wards, the junior, maybe more than 100 patients to see. But then I feel when you compare now and this era, definitely less of paperwork I feel more of hard work, more of dressings. And there was good interaction with the teachers that time, I feel, because social media was not there. I feel today's PG is really distracted because everything is available on the net. And he doesn't know what to read, when to read, because if you don't know basics, there is no point reading advanced things. True, yeah. So we should know the basics. That's what I feel. MBBS also I'll talk a little bit, Tanya. My daughter is in Sion Hospital MBBS now. And then I interacted once a week we sit predominantly, multiple times also when our exams are there. And because of her only my anatomy was revised. So that was a good thing. Yeah. But then I understood her questions are so nice this time. I really appreciate NMC for that. Or the syllabus is very nice because they are now more practical oriented. In our time, typical anatomy questions. Means like nothing clinical oriented. Right. Like I really appreciate in anatomy they're asking something like a radial nerve palsy or a compound fracture. Or biochemistry they're asking like questions related to the lab and then reaching the diagnosis. So it is more clinical oriented. So good. That is the difference I feel. So it is really changed, but changes for good. Yes, sir. Okay. For the
for our audience, could you please explain what orthopedics is basically? Good. Actually, the very first thing I'll just go to that word because this is one of my favorite questions to a lot of MBBS students. What is orthopedics? So a lot of people say predominantly study of bones. So it is a study of the bones. But the word orthopedics came from orthos means deform Okay. and pedics means children. So ideally it should be children, but there are a lot of deformities occurring in children, fractures occurring in children, and that is where first there were only two fields. I'm talking about the above before 18th century history, and then where the deformity becomes, and then this field of orthopedics becomes different from the surgical field, dealing with deformity correction of, like example, the foot correction CTV or the spine correction scoliosis, Right. and also the fractures. And so that is where the word orthopedic comes, and it is really different. I'm really passionate about this subject from maybe more than 24 years now in this field. Okay, sir. Many of the people think that orthopedician only deal with fractures, yeah, joint replacement. So, what are the other things that an orthopedician actually deals with? Absolutely. These are the two highlighting fields in this orthopedics. Like nowadays, I feel a lot of subspecialties occurred. So I'll just, in short, orthopedics initially and now has really changed. Okay. I feel orthopedics like predominantly is covering spine. So first we will talk little anatomy, then we'll talk about the disease. Anatomy, what the orthopedic covers? वो भी जरा misnomer है. Skull को fracture हुआ, rib को fracture हुआ, या jaw को fracture हुआ. Actually, that doesn't classically come. Though it is a bone, doesn't classically come in orthopedics. So orthopedics upper limb, lower limb, spine, and pelvis. Okay. So now we're coming after anatomy. What are the most commonest diseases or thing? So definitely infection, inflammation, then spine disorders. So it is not all trauma, the spine disorders, and then definitely degenerative, Right. and then the arthritic and inflammatory, and most important other things is congenital and tumors. So it is like a combo of all. Roughly we should know everything, but then basic actually is the trauma. The replacement is the one of the prime sections in the orthopedics. Basically, the bread and butter of an orthopedician. Yeah, at least you should know. This doesn't mean the spine. Spine is also very important. Right. Arthroplasty is also, arthroscopy is also very important. And now the hand surgery is coming up. So Right. really, from my era of last 20 years, when a normal orthopedic surgeon used to know everything, now the people are going more subject specific, or like we can say hand specialist, spine specialist, arthroplasty, arthroscopy, and something like a shoulder only I will do. I'll do knee only. So that is the thing. So it has pros and cons, but nowadays it has become more subspecialty wise. Right, sir. Okay, sir. What are the most common bone and joint issues that people of different age groups face today? So like typically you ask, do you want to know like predominantly what are the different conditions in which different age group you want to do? Different age groups. Like different age group, you can say congenital predominantly occurring in the first decades. Like in first decades or maybe the first year, you should like most commonest is congenital CTEV. CTEV. CTEV, that's congenital talipo-equinovirus. Okay. There's a deformity in the foot. Then there is a scoliosis or skyphosis, or then is a spina bifida, congenital disease occurring in the spine. And then you come tumors also, which are common in the first decade, are like Ewing's tumors. Ewing's tumor. Okay. The second age group, so tuberculosis will be common in all the age group because it's still this. So tuberculosis will be one disease which I feel is common in roughly all age group. But when you ask about the age group, so these are the in initial child osteomyelitis, tumors, deformities will be predominantly there. Second, coming to the second age group will be again the infection, the tumors like osteosarcoma. Again, the trauma can occur in all the conditions. So trauma and tuberculosis and inflammation will leave you aside. And then third decade, fourth decade, the other tumors like giant cell tumors or the other tumors can occur, very common. And definitely after the age of 40s and 50s and 60s, the degenerative take place. So what are the degeneration most commonly is? In India, most likely the knee, because of our lifestyle. Right. Because we squat, we sit, as compared to the Western world, they have a lot of hip issues. But in India, we have a lot of knee issues. So osteoarthritis knee is very common, and that is where the knee arthroplasty is more taken up in India. Though I doesn't think hip is not there, but definitely more common cases are occurring in the knee. Okay. And then definitely degenerative spine diseases like lumbar canal stenosis and other diseases which are there in the Older age. older age group. And the older age group also metastasis can also be one of the factors. Okay, sir. So you talked about knee arthritis. Normally, we see patients undergoing joint replacement surgery for that. Could you please tell the common public about what joint replacement is basically? What do you do? Yeah, good. I have one model. I'll explain to you. मैं ज़रा बता देता हूँ आपको. So ये नी जॉइंट है जिसको हम लोग फीमर बोन बोलते हैं, टिबिया बोन बोलते हैं. अच्छा कार्टिलेज रहता है, लिगामेंट्स अच्छे रहते हैं रफली, एंड देन स्लोली एज के हिसाब से या डिसीज के हिसाब से
ये स्लोली से डैमेज होना रखता है, जिससे इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। आपने देखा रहेगा स्लोली ये और ख़राब होने के बाद, ये पूरा ख़राब होने के बाद देन वी गो फॉर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। आपने अगर देखा रहेगा ये दोनों का, व्हेन यू सी ये पूरा जॉइंट खराब हुआ है एंड दैट इज वे हियर कंप्लीटली फ्यूमोरल कंपोनेंट, टिबियल कंपोनेंट एंड द पॉली इज देयर बिटवीन। सो दैट इज एडवांटेज, इसमें हम लोग बोलते हैं। एक मिथ था कि सब निकालते, कि आपने देखा रहेगा लिगामेंट को रखते हैं, बोन्स को जो डिसीज है वही काटते हैं, पूरा नहीं काटते, एंड इसके वजह से बाकी के स्ट्रक्चर्स अच्छे रहते हैं एंड वी कैन डू द गुड मूवमेंट। सो व्हेन यू सी लाइक दिस, सी दिस इज द एडवांटेज। कि जैसा वो मिथ था कि पूरा निकालते का, व्हेन यू सी दोनों लिगामेंट्स इंटैक्ट है, बोन्स भी इंटैक्ट है, जो डिसीज वाला बोन है वही निकाला है। इसमें भी यूनिक कंपार्टमेंट नहीं आ रहे, जिसका मतलब है सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट का नहीं इन्वॉल्व होगा तो यूनिक कंपार्टमेंट हो रहे, बट प्रीडोमिनेटली उसके पेशेंट्स कम हैं आजकल। बट व्हेन वी डू सर्जरी, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट डैमेज टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि अपने पास पेशेंट्स भी जल्दी आते नहीं, बिकॉज स्टिल आवर इंडियन पॉपुलेशन इज एडजस्टिंग टू द आर्थोप्लास्टी सर्जरीज। सो तानिया, आपका क्वेश्चन था कि सब नी जॉइंट को रिप्लेसमेंट करना चाहिए? नो। तो रिप्लेसमेंट कब करेंगे? जैसे एग्जांपल है फीमर बोन बोलते हैं, इसको टीबिया बोन बोलते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, क्वाइट स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज, बट एज एज गोज ऑन एंड मे बी सम डिसीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी अदर, द articular cartilage start become damaging. And then if you see this articular cartilage, इसमें जैसे जिसको middle femoral compartment, femoral tibial compartment बोलते हैं, lateral tibial femoral और एक patellofemoral compartment, ऐसे 3 component रहते हैं नी जॉइंट के, which is called as a tri compartment. और पूरा articular cartilage खराब होने के बाद then there comes the role of knee replacement. So normally उसमें भी 2-3 types है, which we'll discuss in further questions. I feel you will ask me of the plastic, but normally when you ask me when to do the knee replacement, when definitely the articular cartilage, जो पूरा articular cartilage पूरा खराब हो गया, जॉइंट पूरा खराब हो गया, एंड तब नी रिप्लेसमेंट करते। उसमें भी बड़े मिथ है कि पूरा जॉइंट रिप्लेस करते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं, पूरा जॉइंट नहीं रिप्लेस। जो लिगामेंट से आजू बाजू के जो मसल्स है उनको प्रिजर्व करते हैं। जो कार्टिलेज खराब हुआ है उसको हम लोग, जैसे फीमोरल कंपोनेंट है, ये टिबियल कंपोनेंट है और ये पॉली है, जो इट विल एक्ट लाइक अ कुशन। एंड द जॉइंट रिप्लेसमेंट लास्ट 20-30 साल से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरे को याद है मेरे रेसिडेंसी के टाइम फर्स्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट हुआ था, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट हैज़ बिकम, जो पहले रिहैब भी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, बट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो इंप्रूवमेंट है इट हैज़ बिकम ड्रास्टिक। रेंज बढ़े हैं, पेशेंट्स को रिहैब अच्छा हुआ है, पेशेंट्स आर स्टार्टेड वॉकिंग। सो आंसर टू योर क्वेश्चन कि सब नी को करना है, नहीं, सब नी को नहीं करना है। जिनका कार्टिलेज खराब है, जिनको पेन है सीवियर, जिनको सपोर्ट लगता है और जिनके मोशंस, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, चलने को नहीं है, दे डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ओके सर। सर, आफ्टर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना टाइम लगता है रिकवर होने के लिए फुल्ली? आफ्टर लाइक एग्जांपल डूइंग दिस, एक समझो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, आजकल तो थोड़ी बड़ी कंपटीशन लगी कि जल्दी रिहैब, बट देन डिपेंडिंग अपॉन ईच केस, थोड़ा सा वाई यू कांट बी वेरी स्पेसिफिक, ऐसे हर एक केस का एक प्रोटोकॉल रहेगा। नॉर्मली जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्टैंडर्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, पेशेंट वॉक्स इन day 1. ओके, दैट इज अ गुड थिंग। समटाइम्स नाउअडेज विद अ गुड एनाल्जेसिक्स, जो पेन किलर्स बोलते हैं हम लोग, कभी हम लोग इधर अडक्टर ब्लॉक्स देते हैं या एपिड्यूरल ब्लॉक्स देते हैं, इससे पेशेंट को पेन होता ही नहीं है। लाइक माई मदर अंडरवेंट अ सर्जरी, I was one of the surgeons and she was able to walk next day also. And nowadays patients are able to roughly walk next day unless there is a big complex surgery or some constraint जो joint डाला है, some big disease, otherwise patient is able to walk. So what is more important is the quadriceps strengthening, जो बोलते हैं हम लोग muscle strengthening बोलते हैं, ligament strengthening बोलते हैं. And then why we are doing this surgery? What is the motto? The motto is two. The patient should be out of the bed, patient should not have pain and have good range of motion. That is the main motto. And early mobilization. Absolutely, early mobilization. That is a big funda of the joint replacement. Okay, sir. Sir, normally हमने देखा है patients जो भी they undergo surgery orthopedics में, उन लोग को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और फिजियोथेरेपी से वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी में पोस्ट सर्जरी? आई फील बहुत इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी का। व्हेन यू कम जॉइंट रिप्लेसमेंट भी किया है या हिप करो, नी करो, एनी रिप्लेसमेंट, the physiotherapy has a big role. Why? Because उसमें जो muscle strengthening बोलते हैं, gait training बोलता है, that is very important. When you come to the away from the replacement, example complex fractures, I'm telling you like elbow, the knee, they require more vigorous physiotherapy. Even the shoulder, because we fix it, but definitely the other part of the doctors we call rehab
the physiotherapy and even the occupational therapy has a big role in this, especially जिनको mobilization करना है, explain करना है, and उसमें भी काफ़ी एडवांस हुए. Like example, I'm talking 20 साल पहले जो सर्जरी किया था, हम लोग सर्जरी करते थे, तब we were very slow because we are not knowing the results. Now the implants are good. The surgery skills are also improved, right, and the rehab techniques also are good. The machines are also good. Like CPM machine आ गया है, like more innovative techniques have come, water therapy and all that stuff. And then I feel the physiotherapy is a big role. Especially I can say doing a surgery 70%, 30 to 40% the physiotherapy roles come. The rehab role comes. okay, तो इतना बड़ा रोल है इतना और करना उनका जरूरी importance है. एब्सोल्युटली बड़ा इंपॉर्टेंस है. जैसे एनेस्थीसिया का हमारे सर्जरी में इंपॉर्टेंस है एट द सर्जरी टाइम, तो डेफिनेटली पोस्ट ऑप the rehab and the therapist has a big role. Right, sir. Okay. So moving on to trauma care now. जब कोई पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कैजुअलिटी में आता है, ऑर्थोपेडिशियंस दे रन टुवर्ड्स दैट पेशेंट और उनको वी ट्राई टू इवैल्यूएट द पेशेंट. तो तब ऑर्थोपेडिशियन करता क्या है बेसिकली? सो नॉर्मली मैं ट्रॉमा पेशेंट्स में आई विल थोड़ा मैं डिवाइड करूँगा, एक पॉलीट्रॉमा बोल सकते हैं और एक नॉर्मल ट्रॉमा बोल सकते हैं प्रीडोमिनेटली. तो पॉलीट्रॉमा इज डेफिनेटली टेकन ओवर द ट्रॉमा टीम, उसमें भी फ्रैक्चर्स आते हैं. बट एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन we have to examine patient from head to toe, though it is not in our field, it is better to examine. And A, B, C, D you should know, the airway, breathing, circulation, and D is for distal neurovascular circulation. यानी जो उनके पल्स है क्या, नाड़ी बराबर है क्या, पैर के नाड़ी बराबर है क्या, उसका मूवमेंट्स हो रहा है क्या. सो वी रूल आउट वेसल इंजुरी है, नर्व इंजुरी है, फ्रैक्चर के साथ, एंड डेफिनेटली फ्रैक्चर. तो फ्रैक्चर में हमारे इधर एक क्लासिकल फंडा है. अभी समझो किधर फ्रैक्चर हुआ है, एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे को इमोबिलाइज कर दो. सो दैट इज वन थिंग. थोड़ा सा मैं आउट ऑफ एज जाऊँगा. एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आई रियली फील स्टिल बैड. पीपल आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स एंड द थिंग्स विच नॉट बी डन आर गिवन. पहला पानी देंगे, खींचेंगे. तो मीन्स आई फील स्टिल दैट एजुकेशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 20 years, बट वो होता नहीं है. तो एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफ्स रादर देन हेल्पिंग द पेशेंट्स एंड ऑल द स्टफ. सो कमिंग बैक टू द कैजुअलिटी, the trauma units nowadays are very nice, all in corporates and also in the government hospitals. And as you said, orthopedic का रोल होगा जो फ्रैक्चर किधर है. जैसे ABC होने का D हमारा रोल आता है, distal neurovascular, immobilize the fracture, then definitely take the x-rays, and it acts like a one unit. The trauma surgeons, the emergency medicine, orthopedic surgeon, and then other requirements of the other, like if it's any other injuries, the other department comes in. So that is the way. So definitely when you again compare 20 years back and this, definitely there's a lot of advances there and good care of the patients taken nowadays. Okay, sir. Sir, how do you manage high pressure situations and where time can determine the outcome? As you must have heard the golden hour. Right. So now we can say it is a platinum hour. So now orthopedics में platinum hour दो तीन condition में definitely when there is a crush injury. Okay. So that time definitely we have to be active. जो इसमें blood loss बहुत हो रहा है, shock में patient नहीं जाना चाहिए. तो ब्लड भी दे सकते हैं, सलाइन दे सकते हैं, डिपेंडिंग. सो एवरीथिंग हैज अ प्रोटोकॉल उधर. प्रोटोकॉल बराबर से फॉलो करोगे. सो आई फील दैट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमोबिलाइजिंग द पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट डैमेज कंट्रोल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डैमेज कंट्रोल रादर देन डूइंग मोर हार्म टू द पेशेंट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट लेट द पेशेंट बी कंफर्टेबल, गिव हिम एनाल्जेसिक. ABC-D होने के बाद इमोबिलाइजेशन, उसके बाद प्लास्टर्स, एंड देन afterwards then comes the definitive. And one more thing which I want to talk nowadays, the counseling and the talking to the relatives also is a big important thing, because that's where a lot of things are going wrong. Right. And nobody has patience nowadays. Patience के पास है नहीं. And थोड़ा we also as a doctor should also increase. And if a senior doctor talks to the in emergency then the patients are assured and they know what exactly is happening, what is the prognosis of the patient, कैसा है patient की condition, और थोड़ा update करने का, it makes life more easy. That's what I feel. Yes, sir. Sir, how do you determine whether surgery is necessary or if the body can heal naturally? Good question. Now, example, we'll take 2-3 scenarios. Example, the first scenario definitely casualty में जो patient है, once the patient is stable always. If there is a displaced fracture, and if fracture टूटा है, joint involved है, Okay. जिसमें multiple pieces है, age group भी important है प्रीडोमिनेटली. तो इसमें हम लोग अगर मल्टीपल पीसेस है, फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, यानी कंपाउंड का मतलब फ्रैक्चर दो टाइप के रहते हैं, एक ओपन फ्रैक्चर और एक क्लोज फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर मतलब बोन दिखता है एनवायरनमेंट में, दे आर मोर इमरजेंसी बिकॉज दे आर, उनको इन्फेक्शन या हीलिंग के लिए टाइम होगा. देन कमिंग टू द किस में नेचुरल हीलिंग होगा और किस में ये होगा, दैट वाज योर क्वेश्चन. तो नेचुरल हीलिंग नॉर्मली जिसमें फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है, especially younger age group, where there can be remodeling can occur. Right. But definitely when you compare the adult age group,
इफ देयर इज इंट्राआर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली इंट्राआर्टिकुलर मतलब जॉइंट इन्वॉल्व है जिसमें अपने को मूवमेंट्स मांगते हैं. नॉर्मली ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर तो जोड़ने वाले हैं, दैट इज फंडा नंबर 1, बट प्रॉपरली जुड़े, दैट्स व्हाट आवर रोल कम्स एज ऑर्थोपेडिक. दे शुड बी प्रॉपरली अलाइंड, anatomic reduction, and that is the reason उसके बाद वो मूवमेंट्स अच्छे हो गए, क्योंकि अच्छा रिडक्शन बैठेंगे. देन कम्स द प्लेट्स, स्क्रूज, रॉड्स, and they have very much importance. And as I told you, more and more advances is coming, and advances has pros and cons, but I feel more of the pros, where the patient can be early rehab, early walking, and early return to the work. That's more important. So you mentioned plates, screws and rods से हम लोग पेशेंट्स का फ्रैक्चर्स ये करते हैं, मैनेज करते हैं. रॉड्स को इन मेडिकल लैंग्वेज में हम नेल बोलते हैं. Perfect. तो सर ये जो रॉड डालना या नेलिंग करना, इज इट बेटर देन प्लेटिंग फॉर ट्रॉमा सर्जरीज? Again, depending on the fracture, but definitely when you compare a normal fracture, example like a shaft fracture of the tibia, femur और humerus, जो तीन अपने मेन बोन है, राइट. उसमें अगर शाफ्ट फ्रैक्चर रहेगा तो आई फील नेलिंग इज मोर एडवांटेजेस, ओके. more useful. Why? Because it is minimally invasive. Minimally invasive का मतलब like my own technique of 3-stitch technique of the humerus, where we have to put only 3 stitch and the nailing can be done. अच्छा. And even the femur, what is the advantage of nailing over the plating is that minimal invasive. They are called as a load sharing implants rather than load bearing implants. अभी इसका मतलब है जो रॉड अंदर जाता है जिसको नेल बोलते हैं, उसमें ताकत ज़्यादा रहती है. इसका मतलब नहीं कि प्लेट में नहीं रहती, बट नॉर्मली, और इसमें इंसिजन कम रहता है, ब्लड लॉस कम रहता है, एंड वी कैन अर्ली वेट बेयर देम. So that is why I feel nailing scores over the plating. Again, I don't know, like I don't think the plating is bad. Plating is definitely indicated in intra-articular fractures predominantly. Okay. Where the fracture is थोड़ा जॉइंट के बाजू में, जिसमें नेल का रोल नहीं आता है. नेल ज़्यादा करके शाफ्ट फ्रैक्चर, जैसे आपने बोन में डिवाइड किया तो शाफ्ट फ्रैक्चर में नेल का रोल काफ़ी अच्छा है. एंड नाउअडेज newer advances nail has come. We can nail roughly all the fractures except the intra-articular fractures, and nailing has advantage over the plating definitely. Okay, sir. कॉमन मैन क्वेश्चंस भी एड्रेस करना. सो लेट्स एड्रेस दी कॉमन मैन क्वेश्चंस जो आपने वीडियो में देखा होगा. सर फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इज ड्रिंकिंग मिल्क गारंटीइंग स्ट्रॉन्ग बोन्स? ओके, यस, ड्रिंकिंग मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, बट इसका मतलब नहीं कि सिर्फ only drinking milk will guarantee it is a combination. We have to do exercises, and only milk will not help you. कैल्शियम के और भी बहुत गुड सोर्सेस है जिसमें कैल्शियम है. लाइक एग्जांपल, लाइक पनीर है, other food products है, you should have absolutely, dahi hai, lot of milk products. So milk is one of the good content source of calcium. Taking it is absolutely good, but with that we have to exercise, and the lifestyle also has a big importance. All right, sir. Next question. Losing bone density and joint pain is inevitable with age? Yes, you can see losing bone density. So now this topic, bone density का मतलब क्या है? जो bones में अपना ट्रेबेकुलस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, and definitely एज की वजह से हो गए या कुछ डिसीज की वजह से हो गए. एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, एंड डेफिनेटली एज होने के बाद, वेयर एंड टेयर होने के बाद, इट इज गोइंग टू गो डाउन. सो ट्रेबेकुलर पैटर्न, सो व्हेन यू बिकम मोर ओल्ड, डेफिनेटली द बोन आर गोइंग टू बी मोर फ्रेजाइल, एंड स्पेशली द फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉजल जो बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, विच इज़ वेरी कॉमन एज आफ्टर द एज ऑफ 45-50s. राइट. कोई एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे क्लेम करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पियो तो योर हाइट विल इंक्रीज. इज दैट ट्रू सर? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता था. सब जन को प्रोडक्ट हो देते थे यार, किसका हाइट छोटा होता ही नहीं था. सो हाइट एंड दिस हैज नो को रिलेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग. फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली जेनेटिक्स. मम्मी पापा के जैसी हाइट मिलने वाली है. हाँ, उसने मेहनत किया तो डेफिनेट. एंड मोर इम्पोर्टेंट इज दैट आफ्टर द प्यूबर्टल एज जो हम लोग बोलते हैं, जैसे एक 15-20 एज के बाद बोन जो फाइसेस बोलते हैं वो फ्यूज होने वाले, और वो तो ग्रो नहीं होने वाले. तो कौन सा भी ड्रिंक पीने के बाद, बहुत भाई मेरे को भी 7 फीट बनना है तो मैं भी पीता था ड्रिंक्स, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज प्रीडोमिनेटली अ जेनेटिक, 90% इज जेनेटिक्स, एंड डेफिनेटली 10% यू कैन वर्कआउट, जिसको एट द एज ऑफ दैट टिपिकल एज ऑफ 10 to 15 और 10 to 18, दैट प्यूबर्टल एज ग्रुप, यू कैन डू मोर एक्सरसाइजेस, जिसमें कसरत करोगे, मेहनत करोगे तो हाइट बढ़ती. बट इट कांट बी लाइक, देयर इज नो पॉइंट क्लेमिंग दिस एनी एडवर्टाइजमेंट कि मैं ये पीने के बाद बहुत हाइट बढ़ने वाली. सो इट इज, सो फिर कोई छोटा होता ही नहीं था, राइट? हाँ सर, वही. सर एक क्वेश्चन था कि नकल्स जो हम तोड़ते हैं ना, ये वो तोड़ने से आर्थराइटिस हो सकता है? Yes, absolutely. जैसे अभी ये ऐसा कर रहे हैं हम लोग, so this has nothing to do with the joint. It is, but doing anything excess is also not going to help. So by cracking the bone, cracking the joints, or cracking this is not going to cause you arthritis. But arthritis कब होगा? Overuse. Definitely, anything overuse is going to cause you a disease.
or if you have any like rheumatoid arthritis or some other things, then only the joint pain, especially in the hand, can do. But doing this, no, I don't think so. ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं. हाँ, but वो भी लिमिट में होने, नहीं तो कुछ कोरिलेशन नहीं, इसका मतलब कंटिन्यूसली करना इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द जॉइंट्स. राइट सर. सर जॉगिंग और रनिंग जॉइंट्स के लिए हानिकारक है क्या? नो, आई डोंट थिंक दिस एब्सोल्युटली अगेन मिसनोमर. जैसा दूध का था, वो भी मिसनोमर है. गुड ना, जॉगिंग रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ डेफिनेटली, बट देन अगेन डिसीज जॉइंट यू कैन रन जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट नॉर्मल जॉइंट यू आर टॉकिंग डेफिनेटली इज गुड. सो डिपेंडिंग अपॉन ईच पर्सन, एवरी पर्सन कैन बिकम मैराथन रनर. सो इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड एंड दैट एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर हिमसेल्फ रादर देन डॉक्टर ने बोला है. नहीं, तुमको क्या अच्छा लगता है. सब बहुत टाइप की एक्सरसाइज है. रनिंग इज वन ऑफ द गुड एक्सरसाइजेस, वॉकिंग ऑल्सो, ब्रिस्क वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, गोइंग टू जिम इज गुड एक्सरसाइजेस. सो व्हाट यू सूट्स यू, व्हाट यू एंजॉय इट, बट डेफिनेटली एक्सरसाइज इज नीड ऑफ द आवर. बट सर वो उससे वेयर एंड टेयर नहीं होता. नहीं, सी कॉमन, हाँ, सी एनी जो अगेन द सेम आंसर विल बी द like if you are a marathon runner and you are not taking care of that, if not experts are there, your joint is going to get fired, and that's the reason athletes joints are going to get fired after 40s 50s because they are overusing it. Right. They are, I should not use this abuse, but definitely sometimes like little bit of abuse only because that is their profession. And the runners है definitely उनके joints खराब हो गए as compared to this. But ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो sedentary lifestyle वाले हैं, जो अच्छा खाना खा रहे हैं, and their obesity is there. Obesity has in India has, I feel, is a big challenge in next few decades. And so coming back to your question, runners में ज़्यादा रनिंग करोगे, लिमिट से करोगे, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल पर्सन को विल हैव आर्थराइटिस. फॉर रनर्स, एथलीट्स, दे हैव प्रोफेशनल हैंडल्स एंड नॉर्मली आफ्टर दे आर गोइंग टू दैट जॉइंट इज गोइंग टू गेट डैमेज डेफिनेटली. ऐसा. सर एक बार अगर हड्डी टूट जाती है तो इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग अगेन, ऐसा कुछ है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है. हड्डी समझो एग्जांपल कौन से भी टूटी है और प्रॉपरली अलाइन किया है, उसको उसे प्लास्टर से किया है, प्लेट से किया है या नेल से किया और प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ, नो. ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी है, इट इज सच अ नाइस रीजनरेशन पावर and remodeling power. They normally sometime after removing the rod or plate you will not understand which side is the fracture, and it is absolutely normal. The only problem is that patience, थोड़ा time लगता है, and sometimes like you can say it can be like opposite side जो fracture हुआ है, but it can be up till 99 to maybe 100%, and he can do run fracture because lot of, now you must have heard, lot of sportsmen are undergoing fractures, Right. the spine fractures, the stress fractures, the tibia fractures, and they play in professionally. So what's harm? There's nothing harm. So this again is a misnomer. Yes, sir. Sir, is joint pain a normal part of aging? Yes. So joint pain, yeah, little bit vague. You can say question. Like joint pain can be occur in any age group, but definitely when you compare with the old age, definitely why old age में joint pain क्यों होता है? क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो रहता है, जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है अंदर, जो वो क्या उसको बोलते हैं, जो लेमैनिस लैंग्वेज में हम लोग तेल बोलते हैं अंदर के, जॉइंट में फ्लूइड बोलते हैं, वो कम हो जाता है. जॉइंट जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो घिसता है और वो घिसने की वजह से पेन होगा ही, बिकॉज थोड़ा सा डिफॉर्मिटी होता है, करेक्ट, और पेशेंट हैज़ अ लिटिल बिट इशू इन वॉकिंग, एंड then this cycle goes on. So definitely answer to your question, pain and age has a correlation, especially in osteoarthritis or degenerative diseases. Okay, sir. सर ये जो स्क्रूज, प्लेट्स या रॉड्स हैं वो बॉडी में परमानेंटली रह जाएंगे क्या? वो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है हमको, लाइक डालने के पहले बोलते कि कब निकालना है और या फिर निकालना चाहिए कि नहीं. तो नॉर्मली वही से पेशेंट्स के पहला हम लोग फ्रैक्चर फिक्स करेंगे, लेट दैट स्क्रू प्लेट का काम होने. तो नॉर्मली वी से 9 months. वो डायलॉग मेरा बहुत फेवरेट है कि बच्चे को भी 9 months लगते हैं आने को, तो आपको भी फ्रैक्चर को जुड़ने को 6 to 9 months लगेगा. सो पेशेंस. सेकेंड थिंग, कब निकलना है दैट विल डिसाइड आफ्टरवर्ड्स. हो बोला पहले हड्डी जुड़ने दो. नॉर्मली कीपिंग अ रॉड्स एंड प्लेट्स हैज नो हार्म. ओके, एब्सोल्युटली. देन व्हेन टू रिमूव, स्पेशली जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स वाले रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर ये बचता है. सो व्हेन यू रफली आफ्टर 1 to 2 years व्हेन द फ्रैक्चर इज कंप्लीटली हील्ड इन चिल्ड्रन, समटाइम आई फील ये जो इम्प्लांट रिमूवल हम लोग बोलते हैं, रॉड निकालना, स्क्रू, हैज अ बिग रोल एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स. आप बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि वो ग्रोइंग बोन्स रहते हैं. सो ग्रोइंग बोन्स में समटाइम रिमूविंग द इम्प्लांट्स एट द एज लाइक 6 months to 9 months में हड्डी जुड़ जाता है. दैट हैज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल. बट कमिंग टू द अडल्ट्स, ऐसा कंपलसरी नहीं है निकालना. हाँ, बट वो रॉड अगर बाहर आया है, टूटा है या जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल उनका फ्रैक्चर हील होने के बाद, देन डेफिनेटली वी शुड रिमूव. सो इट इज द रॉड इज हेल्पिंग, ही इज योर फ्रेंड, ही हैज हेल्प यू इन द डिफिकल्ट टाइम, सो डोंट वरी. Okay, sir. But that limits your मतलब पेशेंट अगर उसको सीटी में जाना होगा या ऐसा एमआरआई में जाना होगा. एमआरआई में ज़्यादा, एमआरआई का रोल में जब खासकर जो वैल्व्स रहते हैं या पेस मेकर्स बोलते हैं या एग्जाम्पल रॉड्स रहते हैं उसमें भी होता है. बट अभी
MRI has also changed from last 2 decades, 3 decades, and now they are acceptable. There are a lot other MRIs which we can do it properly, and so it doesn't have much issues. And there are replacement of MRI when we can do the CT also. अच्छा. So if the patient wants to remove, that is other thing. There are 2 things of implant removal. इसमें एक बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए. तो इम्प्लांट रिमूवल कब करना है? पहला फ्रैक्चर जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रैक्चर जोड़ने के बाद पेशेंट अगर बोला कि मेरे को इज दैट इम्प्लांट कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू यू, जॉइंट में मूवमेंट्स में तकलीफ हो रहा है या रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, देन यू कैन रिमूव इट. एंड ऑल्सो इफ द पर्पज इज सॉल्व, यू कैन रिमूव इट. ओके सर, ठीक है सर. ये क्वेश्चन एक था पेशेंट का कि जो मेरा हड्डी निकाला है जॉइंट रिप्लेसमेंट में, उसको आप क्या करते हो फिर? नाइस, अच्छा क्वेश्चन है. नॉर्मली पूछते हैं आजकल, लाइक एग्जांपल हम लोग कट्स लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं. सच एग्जांपल, इसमें अभी ये नॉर्मल जॉइंट है और ये जो खराब हुआ वाला जॉइंट है उसको निकाल के हम लोग ये डालते हैं. तो इधर के कट्स नाउडेज अच्छा टाटा मेमोरियल ने अच्छा किया बोन बैंक करके, विच वी आस्क द पेशेंट इनिशियली कि बोन बैंक में दे सकते हैं क्या. एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स आर गिविंग दिस बोन्स टू द बोन बैंक. ओके, नॉट अ खराब वाला बोन, जो नॉर्मल वाला बोन भी जो थोड़ा निकालते हैं हम लोग. एंड दैट कैन एक्ट लाइक अ स्टोर एंड विच विल हेल्प जो बाकी के सर्जरीज के लिए, जिसमें बड़े ट्यूमर्स वाली सर्जरी रहेगी या जिसमें बोन डिफेक्ट वाले रहेंगे, इसमें कर सकते हैं. बट द कंसर्न हैज टू बी टेकन. अदरवाइज वेरी स्मॉल पीसेस वी हैव टू डिस्कार्ड देम एज अ बायोमेडिकल वेस्ट. ओके, सो दैट कैन बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट ऐसा? यस, हाँ, जो नॉर्मल वाला टिश्यू, नॉट एबनॉर्मल वाला टिश्यू, जो ऊपर वाले हम लोग कट्स लेते हैं. लाइक एग्जांपल, रादर देन नी, जैसे एग्जांपल आपने देखा रहेगा हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट है, तो प्रीडोमिनेटली बॉल भी खराब है, सॉकेट, बट पूरा बॉल खराब नहीं हुआ रहता, जिसमें नेक बोलते हैं या रहते, दैट इज लिटिल बिट स्टिल नॉर्मल, विच कैन यूज एज अ बोन ब्लॉक और बोन बैंक स्टोरेज. एंड टाटा मेमोरियल एंड अदर हॉस्पिटल्स आल्सो हैव अ बोन बैंक सिस्टम, जिसमें ग्राफ्स लगते हैं, एलोग्राफ्स बोलते हैं हम लोग. तो हियर वी कैन, जिसमें डिफेक्ट्स है, बोन के डिफेक्ट्स है और यू रिक्वायर, जिसमें नॉन यूनियन बोलते हैं हम लोग, उसमें अगर लगेगा तो दैट बोन कैन बी यूज. बट दैट बोन इज प्रॉपरली स्टरलाइज, प्रॉपरली done, all the protocols are followed, and which is a normal allograft can be used. So definitely still ये awareness कम है. bone bank, जैसे blood bank है, bone bank भी है, skin bank भी है. So I feel bone bank has still not got that importance as definitely blood bank तो definitely है. Skin bank is also coming, quite skin bank और skin graft bank बोलते हैं. And definitely the cord bank, आजकल the cord blood आता है. तो डेफिनेटली द बोन ग्राफ्ट जो है, जो नॉर्मल बोन निकाला जॉइंट रिप्लेसमेंट से, दैट नॉर्मल बोन कैन बी डेफिनेटली गिवन टू टाटा मेमोरियल बाय द कंसर्न ऑफ द पेशेंट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स एंड कैन बी यूज. सो दिस इज गुड. हाँ, दैट इज एक्चुअली ग्रेट. सर, आपने 2 बुक्स लिखी हुई है, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या? यस, ये 2 बुक्स है. पहला बुक है मेरा जिसको प्रैक्टिकल गाइड बोलते हैं, फीमोरल नेक सिस्टम. ओके. तान्या, ये ऐसा बुक है कि नॉर्मल ये बुक के ऊपर एक नया इम्प्लांट आया था 5 साल पहले. 2017 में चालू हुआ था, बट इंडिया में आते आते कोविड के फर्स्ट एंड सेकंड वेव में काफ़ी रीच हुआ था. और वो मेरा थीसिस टॉपिक दिया था मेरे स्टूडेंट्स को, केवल नया इम्प्लांट है तो हाउ विल स्टडी. आई रियली लाइक दैट. अच्छा लगा मेरे को इम्प्लांट, क्योंकि उसको नेक फीमर में प्रॉपर रिडक्शन करोगे तो दिस इम्प्लांट स्कोर्स ओवर द काउंटर पार्ट्स. उसके काउंटर पार्ट जैसे सीसी स्क्रू पकड़ोगे, DHS with डी रोटेशन पकड़ोगे, ये 2-3 इम्प्लांट. नेक फीमर इज वन ऑफ द मोस्ट इमरजेंसी and what we called one of the bad fractures to have. Prognosis बहुत खराब है और उसको फिक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इम्प्लांट आई फील स्कोर्स ओवर द अदर सिस्टम्स. ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है, स्पेशली रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड इज वन ऑफ द टाइम काइंड ऑफ द बुक इन द होल वर्ल्ड वी आर रिटन इट. एंड रियली थैंक्स टू ऑल माई द सब एडिटर्स, स्पेशली संजय धर, who is my mentor. He always helps me whenever in doubt, contact Sanjay Dhar, and he really played a big role in this. Regarding this book, we did around 40 cases, 40 केस किए, and we had a good results. इसका मतलब नहीं कि all were good. We had a 10% of failure rate. Okay. So 10% is quite high, yes. But when you compare the other systems, CC screws, they were 25-30%. So this course over, it is minimally invasive, less blood loss, and early rehab. So अपना this main was purpose. over how many So this was done over the three years. 3 years. And then total it took around 1 year to write the book. So I had a thing with JP and I had signed 4 books with him. This was the first of book. Okay. Really close to my heart and really passionate about this. And maybe the second, there are other modifications also coming in this. Okay. So let's see, we can in second edition we can include that. All right, sir. And coming to the other book, this is very small handbook which I told you, the gout. Gout is still such a common disease and not commonly addressed. Right. And a lot of people are still not able to diagnose gout. And again, where are we build literature? Western world, the US, the European, and still, as I told you, so this book has at least data of 15,000, and 15,000 more data is going to add up in next edition. Okay. So 30,000 data is a good database in all over the country. Yeah. So we have Lucknow, then we have Kurukshetra data, then we have
Navi Mumbai data, we have Thana data, means lot of other like multi-centric studies. Okay. So multi-centric studies helps for two things, like diversification occurs, and second thing is that a lot of community based here. Oh. So in that, quite good, interesting, good must read good book for the, अच्छा रहेगा book, ये book पढ़ोगे गाउट के लिए. इसमें काफ़ी कुछ दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे गाउट बढ़ता है, किससे कम होगा, और टैबलेट्स कैसे खाओगे, क्या डोसेस कैसा लोगे, एंड आई फील दिस इज अ गुड थिंग. It'll help the ऑडियंस अच्छा रहेगा. सो दैट इज अ थिंग. सो लेट्स सी two more books are coming, so we'll do it in that. ओके सर. Okay. सर एक डाउट है मुझे, जो इम्प्लांट्स हम डालते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, कितने साल तक वो चल सकते हैं, और कोई मटेरियल्स है क्या अलग अलग टाइप्स के उसमें? नॉर्मली एक 15 से 20 साल तक सब मटेरियल्स मीन्स जो इम्प्लांट्स में डालते हैं मटेरियल चल सकते हैं. बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिरेमिक करके एक मटेरियल है, सिरेमिक, जो इज हैज़ अ ग्रेटर लॉन्जिट्यूडिटी. लॉन्जिट्यूडिटी का मतलब है वो काफ़ी साल तक चलता है, लाइक मैक्सिमम. अभी थोड़ा 3 ग्रेड में मैं डिवाइड करूँगा इनको, सिरेमिक, एक पॉली और एक मेटल, एक रफली, एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो सिरेमिक इज़ लाइक प्रीडोमिनेटली लॉन्जिट्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक चलते. ओके. फिर उसके जैसे मैं बोला, एवरीथिंग हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेज जैसे इज कॉस्टली एंड समटाइम्स दे आर ब्रिटल ऑल्सो, थोड़ा ब्रेक होने के चांस रहते हैं. सो देयर इज अ कॉम्बो, देन यू पुट अ सिरेमिक विथ पॉली, और फिर दूसरा पॉली ऑन मेटल and metal on metal. So predominantly materials has a role. So that is where again the counseling, the pre-op planning is also important. कौन से पेशेंट में क्या डालना है, the experts handles it very well. And definitely the material has a role. Lot of studies are going on, जो बहुत से studies हो गए लास्ट के 10-15 साल में, and the ceramics course over for the longevity Okay. over that. Eventually still studies are not confirmed कि ये बहुत अच्छा ही है. जैसा very vague example sometime जैसा इनोवा भी अच्छी चलती है, मर्सिडीज बेंज भी अच्छी चलती है, बट लाइक व्हाट इज द कंफर्ट एंड व्हाट इज द वे यू वांट टू यूज इट, बोथ डज गुड वर्क आई फील. सो सर उसमें तो मतलब कॉस्ट भी आएगा. एब्सोल्युटली. जैसे इंडियन इम्प्लांट, जैसा बहुत बार वो डायलॉग इंपोर्ट इम्प्लांट वापरा है, इंपोर्ट विच इंपोर्टेड इम्प्लांट्स, देयर गुड कंपनीज आर देयर इंडियन कंपनीज एंड रफली दे डूइंग अ गुड जॉब. नॉर्मली विच व्हाट सर्जरी हम लोग कब करते हैं, प्रीडोमिनेटली आफ्टर 60s 70s, एंड द लाइफ लॉन्जिट्यूडिटी ऑफ एनी इम्प्लांट या उसका एज है वो 15 से 25 साल तक रहता है. वो कैसे आप यूज़ करोगे उसके ऊपर भी है. पेशेंट ने भी अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो मोर वेयर एंड टेयर किया तो मोर वेयर एंड टेयर होगा. तो एडवांटेज ऑफ सिरेमिक ओवर इज द लेस वेयर एंड टेयर, बट डिसएडवांटेज द कॉस्ट एंड द थोड़ा इट इज मोर फ्रेजाइल व्हेन दे कंपेयर टू द अदर इम्प्लांट्स मेटल एंड पॉली. रफली द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. सो ऑल द इम्प्लांट्स हैज अ गुड रिजल्ट. Most important, the placement of implant is very important. Surgical skills are more important here. Materials are always there. Okay. तो अपना ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी सब ही अच्छी है, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. सर एक और डाउट था मेरे पास. ये नॉर्मली हम सुनते हैं कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि हेमी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है या तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, तो ये दोनों कब हम डिसाइड करते हैं कि कब क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे अभी देखा है हिप जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो नॉर्मली इसमें से रफली जिसको हम लोग ए वैस्कुलर बोलते हैं या आर्थराइटिस बोलते हैं, हिप को हुआ है, या एसिटेबुलम अच्छा है, राइट. सो देन वील वाई टू डू द, अपना नेचुरल है क्यों बदलने का. बराबर. सॉकेट जो अपना जैसे बॉल एंड सॉकेट है, तो सॉकेट अच्छा है तो सॉकेट बदलने की जरूरत ही नहीं. तो उस टाइम हेमी आर्थोप्लास्टी बोलते हैं, आधा ही रिप्लेस करते हैं. सिर्फ बॉल, हाँ सिर्फ वो बॉल को रिप्लेस करेंगे. बॉल को रिप्लेस करके, हाँ बॉल को रिप्लेस करके वी आर गोइंग टू डू दिस, जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वी जस्ट रिप्लेस दिस, क्योंकि सॉकेट अच्छा है अपना, समझो अभी ये सॉकेट अच्छा है तो वाई टू रिप्लेस. सो दिस विल बिकम अ हेमी आर्थोप्लास्टी. व्हेन देयर इज अ सॉकेट इज गुड बट द बॉल इज बैड, एंड व्हेन दोनों खराब हो गए, लाइक एग्जांपल एक सिनेरियो में जैसे दोनों खराब हो गए, so there is no point keeping a diseased bone जिसमें और पेन होगा, and that is the reason when we replace with a ball and socket. That is the reason here. So this is the way implant. अच्छा. तो in short depending upon किधर डिसीज का अफेक्शन है, किधर डिसीज हो गया है, बॉल को हुआ है कि सॉकेट को हुआ है. सिर्फ बॉल को हुआ रहेगा, सॉकेट अच्छा रहेगा तो why to replace it, and that is the reason to hemi or total arthroplasty. Okay. सर ट्रॉमा और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? नाइस. अभी हाँ, तो ट्रॉमा में हम लोग देखेंगे तो ट्रॉमा का डेफिनेटली पहले न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर देखना जरूरी है. उसके सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन पूछोगे तो व्हाट आर द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन से होते हैं? इन्फेक्शन. वो भी लेट, बट पहले बराबर से सर्जरी हो गया, उसके बाद अगर वो
लाइक एग्जांपल पेशेंट का केयर बराबर नहीं हुआ, इम्यूनिटी कम है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स, नो डॉक्टर्स वांट टू कॉज एनी इन्फेक्शन टू एनी पेशेंट, so definitely but there are some things which are not in control, like uncontrolled diabetes, other comorbid factors like polytrauma patients and all that stuff. तो like example answer to your question, समझो हड्डी को तो जोड़ना है बट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट नहीं हुआ या फिर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इम्प्लांट नहीं हुआ तो फेल होते, और उसके बाद फेल होने का अगर वो नॉन यूनियन का मतलब जुड़ेगा नहीं या इन्फेक्शन हो गया। 2 मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है फ्रैक्चर हीलिंग में, फ्रैक्चर ट्रॉमा पेशेंट्स में। आप अगर आर्थोप्लास्टी के पेशेंट्स पकड़ोगे तो नॉर्मली सबसे डरावना वाला कॉम्प्लिकेशंस ऑर्थोपेडिक्स में रहता है हमारा इन्फेक्शन हो गया, लाइक वी आर पैनिक एंड पेशेंट बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस दैट, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो हम लोग प्री ऑफ प्लानिंग करते हैं, प्री ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स करते हैं, उसके बाद प्रॉपर अगर शुगर रहेगा तो शुगर का कंट्रोल करना, थायराइड रहेगा तो थायराइड का कंट्रोल करना, एंड अदर लाइक इम्यूनिटी कम रहेगा तो समथिंग लाइक ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा तो उसका ख्याल रखने का। सो दिस आर ऑल थिंग्स। सो complications can occur due to the patient things, complication can occur due to the surgical way, and complication occurs due to the post-op also बराबर नहीं हुआ तो। So that combination of all things. So joint replace के complication predominantly improper placement of implant अगर हुआ या फिर infection हुआ, then it's disaster because we have to remove so much of big thing and again either replace it again when the infection settle down or we have to fuse it. पूरा इम्प्लांट निकालना पड़ता है। हाँ, बिकॉज अगर इन्फेक्शन हुआ रहेगा, अगर इन्फेक्शन फ्रैंक इन्फेक्शन रहेगा, देयर इज नो पॉइंट कीपिंग अ जॉइंट देयर। राइट राइट राइट। व्हेन यू अगर आपने ये पूछा रहेगा कि ट्रॉमा पेशेंट्स में क्या होता है पीरियडोमेंटली, अगर इम्प्लांट बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं, सब डॉक्टर अच्छे ही है, सब डॉक्टर को अच्छा ही करना है पेशेंट्स को, बट देयर आर समथिंग व्हिच आर ऑस्टियोपोरोसिस रहता है जिसमें होल्ड अच्छा नहीं आता है, कभी भी रिहाब में प्रॉब्लम होता है या पेशेंट वापस गिरता है बहुत बार, और या फिर शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। सो दैट हैज़ टू बी टेकन, the post-op care, the post-op rehab, the advice of the doctor has to be listened to the patient properly, and patient also should follow good nutritious diet, immunity should be low, hemoglobin should be high, blood should be that the blood level should be good, hemoglobin level should be good. So that's the thing. So there are complications. No doctors want to occur any complication, but there are some things sometimes are not in the control. And as I told you, patient-related complications रहते और surgeon-related and rehab-related. Right. So most of them, in last again 25 years of practice, these complications have drastically gone down. बहुत नीचे गए क्योंकि अवेयरनेस आया है पेशेंट्स में, काउंसलिंग अच्छा हो रहा है पेशेंट्स का, एंड अच्छे इम्प्लांट्स हैं, पेशेंट्स नाउडेज ऑल्सो अच्छा लग रहा है कि पेशेंट्स बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछना ही भी चाहिए। मेरे को लगता है जितना क्वेश्चन पहले ऑपरेशन के पहले पूछोगे बेटर है, या ऑपरेशन के बाद क्वेश्चन पूछना इट विल बी मोर इन डिफिकल्ट कंडीशन अस टू आंसर, देन ऑपरेशन के पहले जो भी है पूरा पूछो, मांगते तो आपके 10 रिलेटिव को लेके आओ, एक प्रॉपर काउंसलिंग करो और हो जाओ। राइट, आजकल के पेशेंट्स काफी इन्फॉर्म्ड रहते हैं ना, वो दे यूजुअली सर्व द गूगल बिफोर कमिंग टू आवर क्लिनिक। दैट्स द रीजन आई डोंट लाइक नाउअडेज जैसा द वायलेंस बहुत हो रहा है एग्जांपल, खास करके कैजुअलिटी में। आपने अगर देखा रहेगा रफली तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होते, एज कॉर्पोरेट दोनों में होते, बट देन यही बैरियर है जो काउंसलिंग है, पेशेंट को क्या हुआ है भोजन को मालूम नहीं, एंड समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गोज टू देयर, and then even the patient doesn't want to hit any doctor or not to cause any damage to the hospital, but वो क्यों करते? Because of the lack of communication, lack of coordination, ऐसा लगता है। That is the thing, bad part on that. Yes sir, जैसे आपने बोला complications आजकल काफ़ी reduce हो चुके हैं, that's because of the latest advancements in trauma और या कोई भी surgery in orthopedics basically। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है सर अभी? अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट में लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ोगे तो डेफिनेटली रोबोटिक्स हैज़ कम। थोड़ा लेमैनिज को एक बताता हूँ, जैसा अभी एक एग्जांपल, जैसे गाड़ी पहले मैनुअल थी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, हम लोग नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते थे, नी रिप्लेसमेंट एग्जांपल पकड़ते हैं। उसके बाद रिवर्स कैमरा आ गया, जिसको हम लोग को हेल्प हो रहा है कि बाबा गाड़ी अपने को बराबर से पार्क करनी है, इट इज दे आर कॉल्ड नेविगेशन, दे हेल्प यू टू, जैसे अभी गूगल किधर जाना है, इधर जाना है तो गूगल है, टाइम भी बता रहे। और फिर तीसरा आया है आजकल टेस्ला का ड्राइवरलेस, या फिर एग्जांपल रिवर्स पार्किंग खुद करती गाड़ी, तो दैट वेयर द रोबोट रोल कम्स। सो रोबोट अच्छा है। कितने जन क्वेश्चन पूछे, रोबोट मेरे को रोबोटिक करना है, रोबोटिक क्यों करना है? सो रोबोट हैज़ अ एडवांटेज, यस, अगर आपने पूछो मेरे को तो डेफिनेटली वो रोबोटिक सर्जरी हैज़ एडवांटेजेस, बट दिस डजंट मीन तो नॉर्मल सर्जरी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे, बट देन वाई रोबोटिक का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज रोबोटिक का है कि जो कट्स होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं। ओके, थोड़ा वो एक मिथ है बहुत जन का कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब पूरा रोबोट आता है और सर्जरी करता नहीं, सर्जरी सर्जन ही करता है। रोबोट इज टेकिंग केयर टू डिक्रीज ह्यूमन एरर। इसका मतलब क्या है, जो कट्स लेते हैं ह्यूमंस लोग या कुछ थोड़ा सा प्ले रहता है, और प्री ऑप प्लानिंग के लिए रोबोटिक सर्जरी हैज़ बिग रोल। प्री ऑप प्लानिंग मैन्युअली करते, बट सीटी स्कैन बेस्ड आजकल प्लानिंग आ रहा है, जिसमें हम लोग पहले डिसाइड करें कौन सा
फीमरल कंपोनेंट डालना है या टीबियल कंपोनेंट डालना है, कितना डालना है. अच्छा. सो और पेशेंट को भी समझता है कि हाँ मेरे को ये, एंड जेनरिक स्पेसिफिक जैसा बोला आपने, जैसा फीमेल्स को अलग, मेल्स को अलग, बिकॉज फीमेल्स द बोन्स आर लिटिल स्मॉल एज कम्पेयर टू द मेल्स. उसके बाद दे आर ऑल्सो, नया टेक्नोलॉजी में रोबोटिक का एडवांटेज विच आई फील इज, एज आई टोल्ड यू, प्रिसाइज कट, लेस ब्लड लॉस, अर्ली रिहैब. Okay. Disadvantage is definitely the cost. So everything has its pros and cons. In between, navigation work came up very nicely. Navigation का मतलब used to again see कि जो एंगल हमको मांगता है, हाँ. जो नी जॉइंट में जो कंपोनेंट्स का एंगल, कंपोनेंट बराबर बैठने चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, हाँ. वो नेविगेशन से भी होता है. सो अगेन same to your question, I feel robot has advantages over the normal conventional, and lot of the Indian orthoplastic surgeons are taking robots, and they are seeing the advantages, and even the publications suggest the robotic has the advantages. And as I said, it has pros or cons also, the cost factor and other factors. Yes, yes. But सर्जन उस टाइम पे सर्जरी ओटी में रहता है. ओके, ये नहीं एक वापस मेरे को थोड़ा क्लियर करते हैं आज फंडा. जैसा नॉर्मली ये पेशेंट है, नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमने स्किन इंसिजन लिया, इंसिजन लेना, सब कुछ लेना काम सर्जन का ही है, सर्जन ही है. रोबोट इज नॉट कंट्रोलिंग द सर्जरी, सर्जन इज डूइंग इट. फिर रोबोट क्यों बोल रहे हैं? हाँ, रोबोट का रोल है, जो कट्स लेते हैं वो रोबोट का काम है, जो प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट है वो रोबोट का काम है. तो रोबोट विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ गाइड टू यू, इज हेल्पिंग. एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने वाले जैसे एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक पार्किंग कर रहा है बट गाड़ी तो अपने को ही चलाना है. सो रोबोट हैज द एडवांटेजेस, but definitely you are sitting in the car and you are also having a control. Okay. Not the robot is completely control. So you are the main surgeon, a robot is there for assisting you. Okay. ये थोड़ा मेरे को तो मिथ, बहुत जन को मिथ. हाँ कि डॉक्टर आप ओटी में नहीं हो गए, क्या ऑपरेशन थिएटर में देखो रोबोट जाके, नहीं हम लोग ही रह के सब करें, रोबोट हमारे कंट्रोल में, हम रोबोट के कंट्रोल में नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Sir, अभी we were talking mainly, we were targeting the layman. Let's dive into the aspect जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स या जो रेसिडेंट्स है ऑर्थो में उनको हेल्प होगा, या कोई भी फील्ड में मेडिकल में. तो सर आई केम अक्रॉस दैट यू हैव पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. सो तो पब्लिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? पब्लिकेशन हैज़ इंपॉर्टेंस, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसका रीज़न बताता हूँ. आई विल लाइक टू not appreciate and also thanks NMC and MMC because they have made the publication compulsory for faculty also and for residents also. तो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, because I feel publication has a role because we are still little lacking behind the Western world. And by this publication we are knowing first thing what is happening latest. Second thing, we are very skillful, but our data is not good. The data keeping especially now, last decade or 5 years, the data keeping has really improved in Indian system. Right. And so that's the reason we are able to publish a lot of people, and we are like, come on, our surgery, we are one of the maximum doing surgery in the world. And our data is like a gold. And if you can use it properly for publications, it is very good. Like example, publications can be prospective, retrospective, newer, older, qualitative, quantitative, depending upon that. And definitely publications helps us to be updated, to know the protocols, because if the same scenario, one person is doing 100 cases and one person do 2 cases, but definitely the person who is doing 100 cases is a master in that and he can just give some protocols. Right. And here publications has, I feel, very very important. And thanks again to NMC, तो फैकल्टी को भी किया है कि प्रमोशन करने के लिए आपको थोड़ा पब्लिकेशन मांगते हैं. उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे. पहले जो इंडेक्सिंग था वो कम था, अभी इंडेक्सिंग भी बढ़ा है, जब पबमेड बोला है, स्कोपस बोला, बिकॉज दे आर रेप्यूटेड थिंग्स. एंड रेप्यूटेड जर्नल्स में अगर आप करोगे तो फेम भी होगा, आपका फायदा भी होगा, एंड ऑल्सो दैट यू गेट एकेडमिक थिंग्स एंड यू आर डूइंग इट एंड यू आर शोइंग योर वर्क, दैट ऑल्सो हेल्प्स. अभी मैं एडिटर हूँ बॉम्बे ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के जर्नल का, उसका JOCR का एसोसिएट एडिटर हूँ, न्यूज़ लेटर का हूँ. सो अच्छा लगता है, आर्टिकल्स आ रहे, उसमें हम लोग एडिटर या अपन आर्टिकल्स आते, वी आर लर्निंग एवरी टाइम, वी आर लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज द नॉलेज. सो पब्लिकेशन हैज़ अ बिग रोल, स्पेशली फॉर द रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अभी उनका थीसिस है, थीसिस, अगर वो थीसिस क्यों देते पब्लिक रेसिडेंट्स को? इसलिए देते कि वो सीखे. इससे अभी जैसे हमारा एक थीसिस था फ्यूमरल नेक सिस्टम, जो हमारे रौनक ने किया था, मेरा स्टूडेंट ने, एंड इन दैट इट वॉज अ न्यूअर सिस्टम, सो वी वांटेड टू नो. सो थीसिस वाज अ गुड थिंग एंड हम लोग ने किया काफ़ी अच्छे, 50 के ऊपर, उसके टाइम 50 के ऊपर केसेस के, अभी 70-80 केसेस के, एंड देन वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स. वी आर नॉट फॉर दैट सिस्टम. पब्लिकेशन करने का मेजर एडवांटेज क्या है? वी नो व्हाट इज न्यूअर जो आ रहा है उसमें समझ रहे हैं, उसके प्रोज भी समझ रहे हैं, कॉन्स भी समझ रहे हैं. एंड सेकंड थिंग, एज आई टोल्ड यू, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ गुड स्टडी, वी कैन हैव अ प्रोटोकॉल्स.
लाइक एग्जांपल इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर है हमारे जो कॉमन फ्रैक्चर है या डिस्टल रेडियस है, इसमें कब प्लेट डालना कब नहीं डालना, सो अच्छे पब्लिकेशन से हमको समझ में आता है कि कौन सा पैटर्न में हम लोग ऐसे डाल सकते हैं. करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. रिजल्ट्स एंड डूइंग सर्जरी एंड रिजल्ट्स आर टुगेदर, बट डूइंग इट प्रॉपर प्रोटोकॉल्स विथ अ गुड पब्लिकेशन बैकअप डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. तो पब्लिकेशन आई फील इज अ नीड ऑफ द आवर. Every student should do it, faculty should do it, show their work, and it is good for their academics and also helping our country to be growing up with the Western world. Yes, sir. Correct me if I am wrong. सर हम लोग अभी भी आई थिंक यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड का डेटा यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट आवर पेशेंट्स. सो आई थिंक विद पब्लिकेशंस दिस वी कैन यूज़ आवर ओन डेटा टू ट्रीट आवर. Absolutely very nice, because उनके पेशेंट्स अलग है. उनका जो है बॉडी मास इंडेक्स है या उनका फिजिक्स है डेफिनेटली डिफरेंट. अभी गाउट का एग्जांपल बता रहा हूँ. गाउट में बुक्स हार्डली है. हमने एक छोटा सा हैंडबुक किया है जिसमें हम लोग अभी भी प्रोटोकॉल्स फॉलो किसके करते हैं, वेस्टर्न के. तो इंडियन पॉपुलेशन में हमारे पास एटलीस्ट 10 कम्युनिटी है, मोस्ट कॉमन 10 कम्युनिटी. उसमें हमने 6 कम्युनिटी का डेटा लिया था, विच इज डेटा ऑफ 25,000 पेशेंट्स, एंड दैट डेटा इज डिफरेंट इन ईच कम्युनिटी. Okay. And that is the reason still the levels of sugar of the western world are different than our example, the level of uric acid should be considered different. That's what our book says roughly. And so what you said, publications, right, like research has a big role, because still we are following the western world, Right. and our body is different than their body, and it is important. The publications are important. Okay, sir. So one more very important aspect that I think सबको पता होना चाहिए as a medical professional is to have financial knowledge basically. So sir, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या? Financial knowledge Okay. डॉक्टर्स में कितना important होना? This topic is really close to my heart, ऐसा बोलते हैं. Actually post COVID and pre-COVID also a little bit. I said again the incidents are occurring most of in the violence against the doctor. The COVID really changed my mindset, and then I really little bit telling one name, Ramnath Gute. He's a founder of the WealthCon. He's a radiologist, and really he gave a lot of awareness to the doctors. And I feel financial literacy is very important. I'll use some rash language here. I should not use this, but we are the cream of the society. As an orthopedic surgeon, I feel I'm a little bit of cream of society, one of the best. As an MBBS, you are one of the cream of the society. And some agent comes who's less educated and teaches you because you are illiterate. And sells you any policies which is good for him, not for good for you, Right. which is not wrong, which is absolute. So definitely मैं ऐसा नहीं बोलूँ उसकी बुक्स पढ़ो, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए. तो बेसिक नॉलेज बहुत जन पूछते बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है, क्योंकि आपने सिलेबस में तो दिया नहीं है. वो अच्छा हुआ BCBR एग्जाम अभी आ रहा है सिलेबस में, उसका एडवांटेज है जब बायोमेडिकल रिसर्च, इसका एडवांटेज पब्लिकेशंस को हो रहा है. Okay. तो ऐसा तो नहीं आया, बट डेफिनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड इन डॉक्टर्स, बिकॉज वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. वी अर्न क्वाइट गुड अमाउंट, एंड सम अदर पर्सन इज गोइंग टू टेल अस कि ये पॉलिसी लो, उसमें उसको कमीशन मिलेगा और अपने को नहीं मिलेगा. एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट इज इन्फ्लेशन. Right. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इधर फाइनेंशियल में बात करना चाहता हूँ इज इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस. दे शुड नॉट बी मिक्स. ये भी बहुत जन को मालूम नहीं. इंश्योरेंस का मतलब क्या है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस, मेरे को कुछ हुआ तो इंश्योरेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल. हमारे इसमें और एक इंश्योरेंस कौन सा है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो इन्वेस्टमेंट पार्ट बड़ा टॉपिक है. एक शॉर्ट एंड स्वीट में यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक इन्वेस्टमेंट, कहाँ कर सकते हो, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, इक्विटी, डेप्थ. और ये कैसे कॉम्पोजिशन है ना, एज ग्रुप के हिसाब से रहते हैं. डेफिनेटली ओल्डर एज ग्रुप विल बिकम मोर सेफर. एज ग्रुप लाइक यू आर मोर एग्रेसिव, यू हैव अ गुड रिस्क एपिटाइट. तो उसमें हम लोग जरा इक्विटी लाइक प्रीडोमिनेटली रिस्क वाले ले सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि सब इसमें डालना है. Right. सो दैट वेयर द रोल कम्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. तो अपना जो पोर्टफोलियो या वेल्थ मैनेजमेंट है, इसमें हम लोग यू कैन पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सो यू शुड पुट द एग्स इन डिफरेंट बास्केट. कुछ हुआ तो एटलीस्ट समबडी इज देयर. सो गोल्ड and you can say the real estate or the equity market. The gold and equity market sometimes are really opposite to each other, so that way they called as a hedging of the portfolio. और हम लोग उस दोनों को बैलेंस रखेंगे. जैसे एग्जांपल एशियन पेंट्स का शेयर एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ इसमें, और रिलायंस का. तो ये दोनों अलग अलग है क्योंकि उनका रॉन्ग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. सो इन शॉर्ट यू शुड हैव अ सब में डालने का सब बास्केट में एग्स नहीं डालने का, अलग अलग में डालने के. एंड सब में अलग अलग, थोड़ा गोल्ड में डालोगे, थोड़ा रियल एस्टेट में डालोगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, थोड़ा व्हाट यू कॉल्ड एज अ डेट फंड में डालोगे. सो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिस्क एपिटाइट. एंड फॉर दैट
थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज अभी इतना बड़ा, बहुत बोलते डॉक्टर बहुत बड़ा बात किया, बड़ा बात नहीं, वेरी नॉर्मल बात है। अभी हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है कि जो पहले 25 साल था, जो स्टॉक मार्केट था, तो शेयर्स खरीदते थे फिजिकली, अभी तो एक वन क्लिक ऑफ बटन यू डू इट, एवरीथिंग इज एडवांटेजेस। बट देन कम्स द अदर बिग रोल, सब है हाथ में तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई विल से डेफिनेटली बी अवे फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्टिक टू योर बेसिक्स बिकॉज इट इज हार्ड एंड अर्न मनी। एंड वर्स्ट मोर इंपॉर्टेंट डायलॉग, आवर डॉक्टर फील्ड, जैसे मैं मेरे कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ, ऑर्थोपेडिक इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ इनकम एंड मेक दिस फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ second line of income, especially once you are in second decade and third decade of the practice. And passive income का रोल है। पैसिव इनकम मतलब क्या है, when you are resting the income comes, like example रेंट से आ रहा है, या कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं एंड उसमें अपने को फंड्स मिल रहे हैं, उसमें पैसा आ रहा है, वेयर योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड एंड यू आर cool. You can't just run on 24 hours, you will get burnout very fast. And especially the COVID has changed a lot of scenarios. COVID से बहुत जन बड़े doctors have gone to the financial what you call as programs and attending financial programs, good. But then everything has to have a limit. You can't put all the money in finance. So you should have, like उसमें भी knowledge क्यों जरूरी है, जैसे इंश्योरेंस जरूरी है, बहुत जन को लाइफ इंश्योरेंस मालूम नहीं, बहुत जन को प्रोफेशनल इंडेमनिटी मालूम नहीं, कार इंश्योरेंस, कोई भी आके अपना फोन कार इंश्योरेंस कर दो, अरे आईडीवी वैल्यू क्या है गाड़ी का, क्यों ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, उसमें उसका फायदा है, उसको कमीशन मिल रहा है कि अपना है, इट इज आवर ओन हर्ड आवर मनी, व्हाई वी शुड गिव, वी शुड नॉट गिव, यू कैन गिव सम बट सम पार्ट ऑफ द कमीशन बट नॉट होल. So this knowledge of finance is really important. I have my 4 articles on that. People can read that, but definitely basic articles, a basic what you call it, basic knowledge. जैसे gold में भी क्या है, जैसे gold is the universal standard. गोल्ड तो बहुत जन लेते हैं, अपन पूर्वजन गोल्ड लो, क्योंकि गोल्ड इज गोइंग टू गो सेम वे, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप. तो ओनली पेशेंस इज रिक्वायर्ड एंड प्रॉपर नॉलेज एंड व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हेन नॉट टू इन्वेस्ट, and which age group to invest and what is risk appetite and diversification. These are the things you should know. Basic also itna with that, I think proper source to get information about finance is also very important. आजकल तो नहीं, एब्सोल्युटली लुटेरे बैठे, ऐसा नहीं बनाया, शुड नॉट यूज दिस वर्ड, द स्पैम्स वाले बैठे हैं, दे आर सेइंग कि आपका महीने एक इसमें डबल करता, और आदमी समझे आपका 1 रुपया 2 रुपये कर सकता है, तो खुद का क्यों नहीं डाल रहा है. वो जैसे ज्योतिषी का हो गया, वो आपको अपना बता रहा है, उसका खुद का ही मालूम नहीं है तो कैसा होगा. नॉट दैट वे, बट दैट्स द फैक्ट. एज अ डॉक्टर्स आई फील वेरी बैड इफ द पेशेंट, हाँ वो उसको बोल दिया है करने के लिए, द फाइनेंस शुड नॉट बी आउटसोर्स, एटलीस्ट अ बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस हैज टू बी देयर. यस सर. सर एक पेशेंट का एक और क्वेश्चन था, ये जॉइंट जिनको सांधा बोलते हैं, वो जाम हो जाता है ऐसे शोल्डर का. आई थिंक दे वर रेफरिंग टू फ्रोजन शोल्डर, तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हो क्या आप? फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या है, जैसे हिप जॉइंट, जैसे शोल्डर जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आई हैव वन मॉडल हियर, जैसे इसमें आपने देखा ये बॉल एंड सॉकेट है और आजू बाजू काफ़ी लिगामेंट्स है. तो नॉर्मली फ्रोजन का मतलब है मूवमेंट्स नहीं होना, इन शॉर्ट, एंड या रिस्ट्रिक्शन रहना. डायबिटीज पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर ज़रा कॉमन रहता है, और उसकी वजह से खास करके जो पहले वाले मूवमेंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एब्डक्शन, जो हाथ ऊपर लेके जाना सर के ऊपर और नीचे लेके जाना, खास करके फीमेल्स लोग को हुक्स लगाना है या बाल करना है या फिर कपड़े पहनने हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इंटरनल रोटेशन जो बोलते हैं. तो ये कॉमन रहते हैं बिकॉज जो बाकी का जो आजू बाजू का कैप्सूल रहता है जिसको एडिजिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, और जो कैप्सूल इसको जो जॉइंट को है दैट बिकम्स मोर स्टिफ. उसके भी फेजेस रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3. जैसे अर्ली फ्रोजन शोल्डर, व्हाट यू कॉल्ड एज एडवांस फ्रोजन शोल्डर. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट जो गलती पेशेंट्स करते हैं, पेन हो रहा है, डॉक्टर में मूवमेंट नहीं कर रही है, एंड देन इट इंक्रीजेस because the main purpose of adhesive capsulitis main treatment of adhesive capsulitis is what? Exercise and mild painkillers whenever you required, and the rehab. और बहुत अभी डॉक्टर 1 महीना हो गया मैं 10 दिन में हिला ही नहीं, सो व्हाट इज गोइंग टू डैमेज, और क्या होगा, और सांधा को स्टिफ किया, एल्बो को भी स्टिफ किया, हाथ को भी स्टिफ किया. सो दैट इज अ मिसनोमर. तो व्हेन इज पेन, इसका मतलब नहीं कि विगरसली करो, बट एक एक्सपर्ट को दिखाओ, टेक अ प्रॉपर ओपिनियन एंड सी वेदर फ्रोजन शोल्डर है या कुछ इंजुरी है या उसको रोटेटर कफ बोलते हैं, एक बड़ा मसल रहता है रोटेटर कफ जो बोलते हैं हम लोग बड़ा, तो वो है, तो रूल आउट दैट. एक बार वो रूल आउट करके प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया तो द बेस्ट. एंड एज आई टोल्ड यू, फ्रोजन शोल्डर का 80% ट्रीटमेंट आई फील इज अ रिहैब एंड 10-20% इज द मेडिसिन्स. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ मिसनोमर. पेन है, नहीं डॉक्टर ने हाथ हिला ही नहीं, दैट इज समटाइम रॉन्ग थिंग. Okay. Sir, I just wanted to ask you, could you just give some advice for the
aspiring orthopedic surgeons before we end this podcast? एस्पायरिंग मीन्स लाइक प्रिडोमिनेटली आप बोल रहे हैं MBBS के बाद स्टूडेंट्स, जो MBBS का जिनको करना है, MBBS के बाद जिनको ऑर्थोपेडिक करना है, Yes. ऑर्थोपेडिक मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है. मैं आई विल बी बायस इन दिस बट डेफिनेटली आई फील इसलिए बोल रहा हूँ कि सुपर स्पेशलिटी है. इसका एडवांटेजेस है क्योंकि लाइक इसके बाद थोड़ा और सुपर स्पेशल नहीं करना है और रियली इट इज़ गुड फील्ड. मोर्टेलिटी बहुत कम रहती है और अभी अच्छा लगता है कि फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी बहुत आ रहे हैं. 25 साल 30 साल पहले गिने चुने थे और अभी आई फील द रेट हैज़ बिकम टू 5 to 10%. स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस है एंड कॉर्पोरेट कॉलेजेस भी में जो DNB BNB कर रहे हैं उसमें भी फीमेल स्टूडेंट्स आ रहे हैं. रियली फीलिंग गुड. उससे फ़ायदे बहुत हुए. हमारे लैंग्वेज के ऊपर भी ज़रा कंट्रोल आने लगा है. थोड़ा उसमें मिस नोमर था कि ऑर्थोपेडिक फिजिकल डिमांडिंग है क्या, एक्चुअली है बट इतना नहीं है. इफ़ यू वर्क स्मार्ट यू शुड. ऑर्थोपेडिक सर्जन का डायलॉग है वी हैव द पावर ऑफ बुल एंड वी हैव गुड ब्रेन्स ऑल्सो. वी हैव गुड ब्रेन्स एंड इफ़ यू वर्क स्मार्ट एनी वर्क इज़ गुड. सो फिजिकली डिमांडिंग डेफिनेटली पहले जैसे नहीं है जितने थे बिकॉज पहले हम लोग ट्रैक्शंस बहुत लगा रहे थे. लाइक देयर वाज लॉट ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू द नाउ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट. इसका मतलब नहीं कि कंजर्वेटिव होता नहीं होता है. सो प्रोज एंड कॉन्स बट डेफिनेटली नॉट सो फिजिकली डिमांड इज मिस नोमर. जैसे दूध पीने के बाद कैल्शियम बढ़ता है या हाइट बढ़ती है वैसा नहीं होता है. तो इट इज़ मिस नंबर एंड गुड. हमको अच्छा लग रहा है एज अ नाउ मोर देन 20 years इन दिस मोर देन फील्ड द फीमेल्स ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं. इट इज़ गुड बिकॉज दे आर मोर सिंसियर देन द मेल्स आई फील. And maybe my daughter also wants to do orthopedic what she's saying or any surgical field. So let's see. Maybe you can also take a orthopedic field if you want. And definitely males and females का पकड़ोगे तो good. One more advice to the residents और मे बी रेसिडेंट जो कर रहे हैं और जो आने वाले हैं तो बेसिक नॉलेज आना चाहिए ऑर्थोपेडिक का कौन से भी फील्ड का. हम लोग का क्या बोल रहे हैं बहुत बार ऐसा लग रहा है कि सर्जरी करने के बाद मैं कार्डियक सर्जन बनूंगी, मैं न्यूरो सर्जन बनूंगी, हैंड में आने के बाद मैं हैंड ऑर्थोपेडिक आने के बाद मैं हैंड सर्जन बनूंगी, स्पाइन सर्जन. बॉस बनो और पहले बेसिक्स तो आने दो. यू कैंट जंप 10th floor. You have to go step by step. First floor, second floor, ground floor, first floor. So basic knowledge of orthopedics, trauma knowledge or cold orthopedic knowledge is mandatory because of this social media. The people are they don't read normal books. They don't read reference book. They just want shortcuts. जो notes हैं available करो. Look, this is going to be short term. डेफिनेटली बहुत जन बोला हमको वो फील्ड करना है बट एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए. बेसिक ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन, बेसिक कोल्ड नॉलेज ज़रूरी है. तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी अभी MBBS में भी देख रहा हूँ. आई पर बोलता हूँ मैं कि बेसिक रेफरेंस है जो बेसिक बुक्स है पढ़ो. नोट्स तो बाद में पढ़ो एग्जाम के टाइम बट पहले सब्जेक्ट को तो समझो. यू कैन रटोफाई MBBS. You have to understand MBBS. You should be there. Passion should be there to understand. And orthopedics, I feel I welcome those who want because it is a good field. It is nice field. It is really upcoming and good result oriented. Yes, sir. Also, sir, could you please give some health practices for the audience जिसकी वजह से वो लोग major orthopedic problems को avoid कर सकते हैं? There are some things which are in your control. जैसे age is not in your control, but definitely obesity. आई फील ओबेसिटी जो वजन बढ़ना है उसके ऊपर कंट्रोल रखोगे. जैसे मैं आप रोज का मेरा 15-20 या मोर देन दैट OPD रहता है उसमें से मैं 10 जन को तो यही बता रहा हूँ. एक तो ओबेसिटी आई फील जो वजन बढ़ना है मोटापापन बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी बिकॉज दैट इज गोइंग टू कॉज वो नी जॉइंट खराब करने वाले आपके उसके ऊपर स्पाइन के ऊपर प्रेशर आएगा, हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आएगा. उसके बाद उसके लाइफस्टाइल चेंज हो गए तो मसल्स आर गोइंग टू गेट वीक, बोन्स आर गोइंग टू वीक. एंड सेकेंड आई फील जो आ रहा है वो स्ट्रेस, mental stress. The physical and mental is very important. जो things which are in our control, especially doing good exercises, having good diet. बाहर खाओ किधर नहीं खाने का, easily available है, खट बटन दबाया आ गया. बट घर का खाना खाओगे अच्छा है क्योंकि उसमें दे आर गुड न्यूट्रिशियस फूड. स्पेशली फ्रूट्स बहुत जन कम खा रहे, सैलड्स एंड फ्रूट्स. तो वो मेरा बहुत से पेशेंट्स को डायलॉग रहते हैं जबान को टेस्ट नहीं है वो खाएंगे तो आपका वेट कम होगा. वेट कम करने के लिए टैबलेट्स बनते थे तो कितना अच्छा होता था. वैसे टैबलेट्स बनते नहीं है. वो पहला क्वेश्चन रहता है पहला एक टैबलेट दे दो ना वजन कम करना. बोले इतना सिंपल नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग ऑफ डाइट इज़ इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइजेस. ये तीनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स है एंड रिजल्ट्स आएंगे. सो थिंग्स विच आर इन कंट्रोल डू इट. थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल एंजॉय इट. Okay, sir. So we have come to the end of the podcast. Thank you so much, sir, for taking time out of your busy schedule and giving us so much valuable insights today. Your expertise and experiences have truly enriched this podcast today, sir. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. It was a pleasure with you. A lot of things like still are unsolved, I feel. Like still, if you can further also, if there are any questions come, I'm ready to answer these questions. Yes. But a basic thing that
keep healthy, be mentally more strong, because I feel younger generations are going more fragile, especially the residents' point of view, and they have to be mentally more stronger. A lot of issues are coming of ragging and then breaking away very fast. Come on, mentally and physically both you have to be strong, because if you, the question, just to answer your question, if you want to come in orthopedic, it is a demanding field, any field is demanding, but here you don't have to be fragile, you have to be active, you have to be smart. And definitely the COVID has taken toll. I feel like I should not use this word, but COVID का मतलब है ऑनलाइन बहुत हो रहा है, पब्लिक को पढ़ना नहीं, खेलना नहीं है। अभी बहुत दिन वो पहला डायलॉग था कि हम लोग को मम्मी हमको चिल्लाती थी कि घर पे आओ खेलने के लिए, अभी उल्टा हो रहा है कि भेज रहे कि खेलने के लिए. So that is the thing. So things. So good, nice talking to you. It was nice pleasure here. Thank you so much, sir, Thank once you. again. And for the audience, thank you so much for tuning in. Remember, your bones and joints are the foundation of your mobility and well-being. Prioritize your well-being, stay active, and if you have any medical queries, please reach out to a professional. And stay tuned for such more content. Till then, like, share, subscribe to my channel, Dr. Saab. See you soon.